Hello dear students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next topic of acid, base and salt chapter and it is salt. So what is salt? So we all know that when acid reacts with base then salt is obtained. It means हमें पता है जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस से तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है. It means what is the definition of salt? Salt, it is the product in the reaction of an acid with a base. It means salt एक प्रोडक्ट होता है जो कि एक रिएक्शन में बनता है जिसमें कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस से. So listen, for example, if we react hydrochloric acid with sodium hydroxide base, then they will make salt NaCl. It means जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से तो हमें NaCl सॉल्ट मिलता है और बचा क्या, HOH मिलके क्या बनाएंगे, they will form water. It means remaining product will be water. So what will be the definition of salt? It is the product of the reaction between acid and base. It means ये एक प्रोडक्ट है जो कि किसी एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर बनता है. So listen, here NaCl obtained, it acts as salt and it is sodium chloride salt. It is sodium chloride salt. So listen, now we will discuss classification of salt. अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट का क्लासिफिकेशन. यस, सॉल्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है. सो हाउ सॉल्ट इज क्लासिफाइड. सो लिसन, सॉल्ट इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप. फर्स्ट वन इज नॉर्मल सॉल्ट, सेकेंड वन इज एसिडिक सॉल्ट, third one is basic salt, fourth one is double salt, fifth one is complex salt and sixth one is mixed salt. So listen, first we will discuss what is normal salt. So those salt which are obtained by complete neutralization of an acid and base. It means ऐसे salt जो कि एसिड और बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं. फॉर एग्जांपल HCl अगर रिएक्ट करे NaOH से तो हमें पता है इस एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस. तो यहां पर क्या हो रहा है, बाय दिस रिएक्शन दे विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर. We can understood it from this reaction. So listen, when HCl reacts with NaOH, then it will form sodium chloride salt and it is an example of normal salt. जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है ये नॉर्मल सॉल्ट है क्योंकि यहाँ पर जो HCl एसिड है उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है और इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन किसने किया है, NaOH ने. Why there is complete neutralization? Because here H and OH will make one water molecule. Here H, one hydrogen and one OH will make one water molecule. So listen, there is complete neutralization. So due to complete neutralization of acid by base, normal salt is obtained. So the next example of normal salt is Na2CO3, Na2SO4 and KCl. So listen, Na2CO3 means sodium carbonate, Na2SO4 means sodium sulfate. So these are the other example of normal salt. So how will you understood it? So listen, Na2CO3 means sodium carbonate
it is obtained by the complete neutralization of carbonic acid and 2 molecules of sodium hydroxide base. There is complete neutralization because जितना यहाँ हाइड्रोजन है उतना ही ये OH से रिएक्ट करके क्या बनाता है, उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता है. इट मीन्स जितना हाइड्रोजन था उतना ही OH से, इट मीन्स 2 हाइड्रोजन 2 OH से मिलके क्या बनाएगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल. सो दिस इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. इसका मतलब यहां पर क्या है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है. सो लिसन, वी कैन से in another words H2CO3 plus 2NaOH, it can also be understood by ionic reaction. इसे आयनिक रिएक्शन से भी समझा जा सकता है. H2CO3 it will give 2H plus ion and CO3 2 minus ion. 2NaOH will give 2Na plus ion and 2OH minus ion. Now these 2H plus ion reacts with these 2 OH minus ion. It means 2 H plus ion 2 OH minus ion को completely न्यूट्रलाइज करेंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे. और यहां पर भी 2 Na plus ion CO3 2 minus ion को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, Na2CO3. इट मीन्स यहां कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ 2H प्लस आयन 2 OH माइनस आयन को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज, लिसन, इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. सो लिसन, रिएक्शन बिटवीन ऑल आयंस ऑलवेज अकर व्हेन टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेम. इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में रिएक्शन तभी होती है जब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होता है, सेम होता है. तो हमें पता है H प्लस और OH माइनस आयन के बीच में रिएक्शन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है और जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, 1 है. इट मीन्स टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज. So they can react with each other and they will form H2O. तो जो H प्लस है वो OH माइनस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और बनाएगा क्या, H2O, जिसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 0. इसका मतलब प्लस और माइनस आपस में क्या होंगे, ये 0 हो जाएंगे या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. नाउ लिसन, सिमिलरली 2H प्लस 2OH माइनस को क्या करेगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज है 2 यूनिट का और टोटल नेगेटिव चार्ज है ये भी 2 यूनिट का. इसलिए ये दोनों ही 2H प्लस और 2OH माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे. और न्यूट्रलाइज करने के बाद 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे और जो सॉल्ट बनेगा, दिस सॉल्ट इज कॉल्ड एज नॉर्मल सॉल्ट बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड by a base. Now we will discuss second type of salt and it is acidic salt. अब हम दूसरा salt डिस्कस करेंगे जो कि acidic salt है and it is most important and its example is most important for your exam also, NaHCO3. This is sodium bicarbonate or baking soda. It is an example of acidic salt. So listen, NaSCO3. This acidic salt is obtained when carbonic acid reacts with NaOH. Carbonic acid reacts with NaOH or sodium hydroxide base. Then listen what happens. क्या होता है यहाँ पर? Listen, this is acidic salt, sodium bicarbonate, and it is obtained by partial displacement of
H plus ion from an acid by a base. It means जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं वो एसिड में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनके पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के कारण बनते हैं। और इनका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट करता कौन है? बेस। क्योंकि बेस में क्या प्रेजेंट है? बेस में प्रेजेंट है OH माइनस आयन, और OH माइनस आयन को क्या चाहिए? सिंगल H प्लस आयन चाहिए वाटर को बनाने के लिए। तो ये OH माइनस आयन क्या करेगा? H2CO3 मीन्स एसिड या कार्बोनिक एसिड से एक H प्लस आयन को ट्रैप करेगा और OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बना देगा? H2O। इट मीन्स दिस इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस, क्योंकि यहां दो हाइड्रोजन में से केवल एक H प्लस आयन क्या हुआ है? H2CO3 से डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए यहां बचेगा क्या? HCO3 माइनस आयन, और यहां पर क्या बचेगा? Na प्लस आयन, और ये मिलके क्या बना लेंगे? NaHCO3। आप देख सकते हैं यहां पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पूरा हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अगर पूरा हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता तो यहां से दो H प्लस आयन निकलते, बट देयर इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड बाय द बेस। सो एसिडिक सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड बाय द बेस। इट मीन्स एसिडिक सॉल्ट तब बनता है जब कोई बेस क्या करता है? किसी एसिड से H प्लस का या H प्लस आयन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट करता है। सो अदर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट आर NaHSO4, दिस इज सोडियम बाइसल्फेट। तो सोडियम बाइसल्फेट ये एसिडिक सॉल्ट का दूसरा एग्जाम्पल है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेसिक सॉल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So basic salt like BaNO3OH, it is basic salt, and this basic salt is obtained by the partial displacement of OH माइनस आयन। हमें पता है बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? जब किसी बेस से OH माइनस आयन का क्या होगा? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, और ये करेगा कौन? कोई एसिड। सो लिसन, व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस, देन इट विल फॉर्म बेसिक सॉल्ट एंड वाटर। इट मीन्स जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम BaOH का होल ऑफ ट्वाइस भी लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ Ba दो OH से जुड़ा होगा, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज Ba सिंगल बॉन्ड OH, Ba सिंगल बॉन्ड OH। तो होगा क्या? जो एसिड है उसमें एक सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये सिंगल OH को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, और ये क्या मिलके बनाएगा? HOH और H2O। इट मीन्स बेसिक सॉल्ट आर ऑब्टेन्ड by the partial displacement of OH minus ion from the base by an acid. It means basic salt किसी बेस में प्रेजेंट जो OH माइनस आयन है उनके पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं, और ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कौन करता है? कोई एसिड। क्योंकि एसिड क्या देता है? H प्लस आयन देता है, और ये H प्लस आयन क्या करेगा? एक OH माइनस आयन को यहां से ट्रैप कर लेगा, और H प्लस OH माइनस मिलके क्या बना देगा? H प्लस OH माइनस मिलके बना देगा वाटर, और जो NO3 माइनस है वो यहाँ Ba पर आकर रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? बेसिक सॉल्ट BaNO3, और एक तरफ लगेगा क्या? OH, क्योंकि यहां से OH क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। सो लिसन, so listen, we can say this is basic salt and it is obtained by
the reaction of nitric acid and barium hydroxide base. So this हाइड्रोजन ट्रैप दिस OH, यहां से दो OH में से केवल एक OH का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिससे कि हमारा क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा. नाउ वी विल डिस्कस डबल सॉल्ट. सो व्हाट आर डबल सॉल्ट? सो डबल सॉल्ट आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट. इट मीन डबल सॉल्ट जो होते हैं ये दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट्स के मिक्सचर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटास एलम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिटकरी इन अवर डेली लाइफ. इट मीन्स जो पोटास एलम है इसे फिटकरी भी कहते हैं, एंड इट्स फॉर्मूला इज K2SO4.Al2SO4 का होल ऑफ थ्राइस डॉट 24H2O. एंड लिसन, you can see potassium means फिटकरी. It is the mixture of potassium sulfate and aluminum sulfate. It means जो पोटासियम है वो एक डबल सॉल्ट है और ये दो सिंपल सॉल्ट पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिक्सचर है. और ये कैसे बनाया जाता है? पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया जाता है, फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है और क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमें सॉलिड पोटासियम मिल जाती है. सो लिसन, सेकेंड एग्जाम्पल इज मोहर सॉल्ट. इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट. मोहर सॉल्ट भी डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, एंड इट्स फॉर्मूला इज FeSO4.NH4 का होल ऑफ ट्वाइस SO4.6H2O. इट मीन्स जो मोहर सॉल्ट है इसे ही फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं. एंड लिसन, इट इज द मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्ट एंड अमोनियम सल्फेट सॉल्ट. जो मोहर सॉल्ट है वो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दो सॉल्ट का मिक्सचर है. एंड लिसन, इट्स अनदर नेम इज फेरस अमोनियम सल्फेट आल्सो. इसका दूसरा नाम फेरस अमोनियम सल्फेट भी होता है, एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डबल सॉल्ट. नाउ लिसन, so when double salt is dissolved in water, it means जब डबल सॉल्ट जैसे पोटासियम को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये पोटासियम अपने आयंस में टूट जाता है, और ये अपने आयंस में टूटने के बाद अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को बनाता है. सो K2SO4 it will give 2K plus and SO4 2 minus ion. Al2SO4 it will give 2Al plus 3 and SO4 2 minus ion. 3SO4 2 minus ion, because positive and negative charge are balanced after dissociation of salt. It means एल्युमिनियम सल्फेट को जब डिसोसिएट करेंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड आएगा. तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 3 जा 6 और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3 2 जा 6. इट मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज will be equal to total negative charge after dissociation of any salt when it is dissolved in water. It means जब किसी सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो साल्ट हमारा अपने आयंस में टूट जाता है और उन आयंस पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है या सेम रहता है. एंड लिसन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल. तो हमने देखा जो पोटासियम था वो अपने आयंस में टूट गया, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन, सल्फेट आयन, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो मॉलिक्यूल थे ये हमारे सेपरेट हो गए. तो होता क्या है, पोटासियम की क्या प्रॉपर्टी है? जो पोटासियम की खुद की प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी उनके आयंस की भी होती है. It means the property of potassium and its ion
आर सेम। इसका मतलब जो पोटासियम की प्रॉपर्टी होगी वही उनके कंस्टिट्यूएंट आयंस की प्रॉपर्टी होगी। एंड लिसन, पोटासियम इज जनरली फाउंड in solid state. Now we will discuss next type of salt, and it is complex salt. So what is complex salt? So for example, K4FeCN6. This is an example of complex salt. So listen, its name is potassium ferrocyanide. इसका नेम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानने का मेथड क्या है? इसमें ये लार्ज ब्रैकेट ऑफनली रहता है। इट मीन्स अगर किसी भी सॉल्ट में ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, देन दैट विल बी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इट मीन्स तो वो कौन सा सॉल्ट होगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जनरली। So listen, but what is the correct definition of complex salt? Complex salt की क्या definition है? So listen, this is K4FeCN6. It is an example of complex salt. So listen, this is called as potassium ferrocyanide. इट मीन्स अगर एग्जाम में पूछा जाए K4FeCN6 किस टाइप का सॉल्ट है, तो आपके दिमाग में ये ब्रैकेट आना चाहिए और इस ब्रैकेट से आप पहचान जाएंगे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सो लिसन, K4FeCN6 when it is dissolved in water, then it will form 4K plus ion and FeCN6 ion, 4 minus ion. So 4K plus ion is simple ion, and FeCN6 4 minus ion, it is a complex ion or big ion. It means, what is the definition of complex salt? When complex salt like potassium ferrocyanide is dissolved in water. It means जब complex salt पोटेशियम फेरोसाइनाइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या बनाता है? एक सिंपल आयन बनाता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। इट मीन्स व्हेन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन इट विल फॉर्म वन सिंपल आयन एंड अदर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स आयन। इट मीन्स अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो एक सिंपल आयन बनेगा या छोटा आयन बनेगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा या बड़ा आयन बनेगा। देन दैट सॉल्ट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सो लिसन, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। इट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की खुद की प्रॉपर्टी है वो उसके कंस्टिट्यूएंट आयन से क्या होती है? डिफरेंट होती है। सो लिसन, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दियर कंस्टिट्यूएंट आयंस। एंड लिसन, these complex salts exist both in solid and in solution state. It means जो complex salt है वो solid और solution दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो डबल सॉल्ट है वो केवल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पोटाश एलम या फिटकरी। यू हैव सीन इट। नाउ लिसन, लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज मिक्स्ड सॉल्ट। एक लास्ट टाइप का सॉल्ट है मिक्स्ड सॉल्ट। सो व्हाट इज मिक्स्ड सॉल्ट? सो बिफोर स्टडीइंग मिक्स्ड सॉल्ट, you should have some idea about acidic, radical and basic radical. It means mixed salt को पढ़ने से पहले
आपको कुछ आइडिया होने चाहिए किसके बारे में, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बारे में. सो व्हाट आर एसिडिक रेडिकल? इट इज जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, या हम ये भी कह सकते हैं, लिसन, एसिडिक रेडिकल्स आर जनरली नेगेटिव आयंस एंड बेसिक रेडिकल आर जनरली पॉजिटिव आयंस. सो बी फॉर बेसिक and P for positive. So you can learn from BP means basic positive and acidic negative. So acidic radical means negative ion, basic radical means positive ion. So what are mixed salt? So those salt which contain more acidic radical. For example, listen, you can understand it simply from an example. For example, NaKSO4. This is a type of mixed salt. Why? Because it will produce Na plus ion when it is dissolved in water, K plus ion and SO4 2 minus ion. It means जो NaKSO4 है, listen, this is mixed salt. This is the example of mixed salt. और जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये Na प्लस आयन बनाता है, K प्लस आयन बनाता है और SO4 2 माइनस आयन बनाता है. अभी हमने बताया आपको कि बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं. इट मीन्स यहां पर कितने बेसिक रेडिकल हैं? देयर आर 2 बेसिक रेडिकल्स एंड 1 एसिडिक रेडिकल. इट मीन्स ऐसे सॉल्ट जिनमें या तो बेसिक रेडिकल ज्यादा हो तब वो मिक्स्ड सॉल्ट होगा, या फिर एसिडिक रेडिकल ज्यादा हो जाए बेसिक रेडिकल से तो भी वो मिक्स्ड सॉल्ट होगा. इट मीन्स मिक्स्ड सॉल्ट कंटेन जनरली greater number of basic radicals from acidic radical, or mixed salt are those salt which contain greater number of acidic radical from basic radical. For example, another example we can say CaOCl2. This is bleaching powder. This is another example of mixed salt. When it is dissolved in water, then it will give Ca plus 2 ion, OCl minus ion. This is hypochlorite ion, and Cl minus ion. It means, listen, CaOCl2 को हम CaOCl ब्रैकेट क्लोज Cl के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये कौन कौन से आयन देता है? Ca प्लस 2 आयन कैल्शियम आयन, OCl माइनस आयन हाइपोक्लोराइड आयन, एंड Cl माइनस आयन मीन्स क्लोराइड आयन. इसका मतलब इस बार ये जो मिक्स्ड सॉल्ट है इसमें क्या है? 2 एसिडिक रेडिकल हैं. देयर आर 2 एसिडिक रेडिकल्स एंड 1 बेसिक रेडिकल. तो यहां पर 2 एसिडिक रेडिकल हैं और एक क्या है? बेसिक रेडिकल. तो हमने आपको बताया या तो किसी सॉल्ट में बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल से ज्यादा हो, जैसे कि यहां पर NaKSO4 के केस में 2 बेसिक रेडिकल थे लेकिन एसिडिक रेडिकल कितना था? 1. और या फिर किसी सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल ज्यादा हो किससे? बेसिक रेडिकल से. जैसे यहां 2 एसिडिक रेडिकल हैं और यहां पर एक बेसिक रेडिकल, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड सॉल्ट. तो इस टाइप के सॉल्ट को क्या कहा जाएगा? मिक्स्ड सॉल्ट कहा जाएगा. सो लिसन,
this was the classification of salt. I hope you understood it very well. Thank you.